Hello students, let's see some question from exercise 4.2 based on the properties of determinant. In previous topic you have learned different type of properties. Now we will use this. The first type question, using the properties of determinant without expanding. That is very important. Without expanding we have to prove the following results. The first one is this determinant given x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c equals to 0. We have to prove equals to 0. So consider left hand side. Now we apply some property. Okay. Now which property to use, that just depend on your practice. More you practice, more you will able to know directly which property should you can use. So here we apply C1 plus C2. We will add the column second to column first. Second column को first column में add कर देते हैं. Okay. So let's see what we have. We have first column as x plus a, y plus b, z plus c. Second as it is a, b, c. So we apply the first operation C1 plus C2. Property apply की है. You have learned this property that we can add टू रो और कॉलम्स. तो हमने सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दिया. नाउ इफ यू लुक एट फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम, बोथ आर आइडेंटिकल, बोथ आर सेम, एंड यू नो दैट इफ डिटर्मिनेंट हैव टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, सेम है बिल्कुल सारे एलिमेंट, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है. सो दिस द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके. So we apply the operation C1 plus C2. After applying that operation, first and third column becomes same, so the value of determinant is 0. So this is the first question of exercise 4.2. We use the property and without expanding we prove it equal to 0. Now let's see the next question. So now next question is same type question, using properties and without expanding. We have to prove that using properties and without expanding we have to prove that the value of this determinant is 0. So let's consider left side. Columns are 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86. Again you need to find some relation, so that by using property we can prove that determinant equals to 0. So we are applying here C1 plus 9C2. Either you can apply C1 plus 9C2 or you can apply C3 minus 9C2. सेकेंड कॉलम को 9 से मल्टीप्लाई करके या तो आप फर्स्ट कॉलम में ऐड कर दीजिए या थर्ड कॉलम में से माइनस कर दीजिए. इन बोथ कंडीशन यू विल बी गेट द रिजल्ट 0. ठीक है. सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई बाय 9, आइदर ऐड टू फर्स्ट कॉलम और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम थर्ड कॉलम. तो 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, 9 7 या 63 तो 65 बन गया. 9 8 या 72 प्लस 3 75, 9 9 या 81 प्लस 5 86. नाउ अगेन यू कैन सी फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम आर सेम, having same element 65 65 75 75 86 86. So C1 and C3 are identical, so value of determinant is 0. Okay. So you need to do more practices. More you practice, more you will be expert to know how which property should use to get the answer. कौन सी प्रॉपर्टी. विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रूव कर दिया कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0. एक ही ऑपरेशन लगाया C1 प्लस 9C2, या आप लगा सकते हैं C3 माइनस 9C2. इन बोथ वे यू कैन गेट द रिजल्ट. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is again using some properties and without expanding we have to prove the result. So again without expanding, this question number 4th, we have to prove this determinant equals to 0. First column 1 1 1, second BC CA AB. So we apply here C1 C3 plus C2.
C3 में C2 ऐड करेंगे। आपको पैटर्न देखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट थर्ड कॉलम आफ्टर अप्लाइंग दिस C3 प्लस C2 यू लुक एट द थर्ड कॉलम AB प्लस BC प्लस CA। सारे कॉलम्स फर्स्ट थर्ड कॉलम में सब एलिमेंट सेम हो गया, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। इसीलिए ऐड किया C2 को C3 में कि कॉलम की सारी वैल्यू सेम हो जाए। अगर आप देखोगे फर्स्ट रो में जो थर्ड है A इंटू बी प्लस C, वहाँ पे BC नहीं था, सो वी ऐड दैट BC। फिर सेकंड में CA नहीं था तो CA ऐड करने से सेम बन गया। फिर थर्ड में AB ऐड किया तो सेम बन गया। सो नाउ वी कैन टेक दिस कॉमन, जो कॉलम थर्ड है फ्रॉम दैट कॉलम वी टेक AB प्लस BC प्लस CA कॉमन ले लिया हमने। बताया था आपको प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी रो और कॉलम यू कैन टेक एलिमेंट कॉमन। कोई भी एलिमेंट आप जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले सकते हैं। सो आफ्टर टेकिंग कॉमन द थर्ड कॉलम बिकम 1 1 1। सो अगेन C1 and C3 are identical, so value of determinant is 0 0 into AB plus BC plus CA is equals to 0, which is right hand side. So again we use one operation here, C2 plus C3 after getting C3 plus C2 we can able to take common AB plus BC plus CA। कॉमन आ गया तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन in which we prove this result without expanding by using just two properties. One is adding one column to another and second taking common from third column. Let's see the next question. Next question is same as the previous one, without expanding we have to prove the result. Without expand के prove करना है। It is determinant B plus C, C plus A plus B, फिर Q plus R। फर्स्ट कॉलम में A B C है, क्या यूज हुआ है, सेकेंड कॉलम में P Q R का और थर्ड में X Y Z। एंड वी हैव टू प्रूव दैट 2 इंटू A B C P Q R X Y Z। सो कंसीडर लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड करेंगे। अभी तक हमने सब में ऑपरेशन लगाए थे रो कॉलम्स में, अब रो में लगाएंगे। रो में इसलिए लगाएंगे कि फर्स्ट कॉलम में A B C है, वी हैव टू कीप कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम में A B C रहे, सेकंड कॉलम में P Q R रहे और थर्ड कॉलम में X Y Z रहे। अगर हम ऑपरेशन कॉलम में लगाएंगे तो A B C P Q R और X Y Z ये भी मिक्स हो जाएंगे। वी हैव टू कीप दैम सेपरेट, सो वी अप्लाई हेयर ऑपरेशन इन ओनली रोज। रोज में ऑपरेशन लगाएंगे, सो दैट इन फर्स्ट कॉलम वी हैव ऑलवेज A B and C रिलेटेड टर्म, इन सेकेंड P Q R and in third X Y Z. So first operation we apply R1 plus R2 plus R3। फर्स्ट ऑपरेशन में लगाया कि R1 में R2 और R3 को ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2A 2B 2C 2 कॉमन ले लिया। सिमिलरली 2P 2Q 2R 2 कॉमन एंड 2X प्लस 2Y प्लस 2Z 2 टेकिंग कॉमन। फर्स्ट ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें सारे ऑपरेशन हम रोज में लगाएंगे ताकि A B C P Q R और X Y Z कॉमन एक ही कॉलम में रहे। नाउ वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 इज कॉमन इन फर्स्ट रो, यू कैन सी, सो वी टेक 2 कॉमन। फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई किया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 इज कॉमन, वी टेक 2 कॉमन, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से 2 कॉमन लेंगे हम। आप लिख सकते हो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो, आइदर यू कैन टेक डायरेक्टली कॉमन, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 2 कॉमन आ गया। नाउ फर्स्ट बिकम A प्लस B प्लस C P प्लस Q प्लस R X प्लस Y प्लस Z। रिजल्ट याद रखिए, हमें फर्स्ट कॉलम में चाहिए A B C, सेकेंड में चाहिए P Q R, थर्ड में चाहिए X Y Z। तो अब इन सबको सेपरेट करना है। सो लेट अप्लाई द नेक्स्ट ऑपरेशन। ये हमारा लास्ट टर्म जो थी हमारा 2 कॉमन लिया था और ये था A प्लस B प्लस C P प्लस Q।
नाउ वी अप्लाई R1 माइनस R2 माइनस R3। पहले हमने R1 में R2 और R3 को ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी लेफ्ट विद माइनस ए माइनस पी एंड माइनस एक्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में होगा माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स आ जाएगा। R1 में से R2 और R3 को माइनस किया तो फर्स्ट रो हमारी ये होगी, मीन वी गेट वन एलिमेंट सेपरेट, एक एलिमेंट अलग हो गया हमारा ए पी और एक्स आफ्टर अप्लाइंग R1 माइनस R2 माइनस R3। नाउ लेट अप्लाई द नेक्स्ट ऑपरेशन। अब हमें बी और सी बनाना है, इधर क्यू और आर और इधर जेड और वाई। सो नाउ वी अप्लाई द ऑपरेशन। ये हमारा वो प्रीवियस डिटर्मिनेंट ही आ गया लास्ट स्टेप का। नाउ वी अप्लाई R2 प्लस R1 एंड R3 प्लस R1। R2 और R3 में हम R1 को ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन R2 प्लस R1 और सेकंड R3 प्लस R1। सेकंड और थर्ड रो में फर्स्ट रो को ऐड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट रो में हमारे पास माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स है। सो आफ्टर एडिंग दिस वी गेट माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स सी आर जेड और बी क्यू वाई। तो हमने ए बी फर्स्ट कॉलम में यू कैन सी वी हैव ए सी बी, नेक्स्ट पी आर क्यू और फिर एक्स जेड वाई। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए ऑलमोस्ट वो रिजल्ट आ गया है। नाउ वी नीड टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट रो में नेगेटिव साइन आ रहे हैं, माइनस ए माइनस पी माइनस एक्स, तो वहाँ से -1 कॉमन लेंगे हम, तो हमारा ए पी एक्स बन जाएगा पॉजिटिव। सेकंड क्या है कि जो रिजल्ट प्रूव करना है उसमें सेकंड रो है बी क्यू वाई, सेकंड रो तो बी क्यू वाई है और थर्ड रो है सी आर जेड। इट्स मीन वी नीड टू इंटरचेंज सेकंड एंड थर्ड रो। दो काम करने हैं, फर्स्ट रो में से माइनस कॉमन लेंगे और सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे। ये आपके सामने आ गया। तो टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो एंड चेंजिंग R2 एंड R3। यहाँ पे C2 C3 लिख दिया, सॉरी इट इज़ R2 R3। R2 और R3 को चेंज करना है, यू हैव टू चेंज R2 एंड R3। सेकेंड रो और थर्ड रो को चेंज करेंगे। बाय मिस्टेक C2 C3 लिखा गया, इट इज़ R2 R3। तो जब -1 कॉमन आ गया और जब भी हम दो रो या कॉलम चेंज करते हैं तो बाहर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि बताई थी प्रॉपर्टी बाय इंटरचेंजिंग टू रोज और कॉलम साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। तो एक माइनस बार हमने लगाया डिटर्मिनेंट के बाहर, क्योंकि हमने सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है, और एक -1 कॉमन लिया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर जो ऑपरेशन लिखा है C2 C3 दैट इज एक्चुअली R2 R3, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज किया है, सेकंड रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है, तो प्लीज़ इसको आप R2 और R3 लिखना। इट इज़ नॉट C2 C3, इट इज़ R2 R3। सेकंड रो और थर्ड रो को हमने इंटरचेंज किया है। So this is the question number 5th. By applying properties, we prove this result without expanding. Now let's see the next question. Again without expanding, we have to prove the below result. It is 0 A minus B minus A 0 minus C B C 0 0 प्रूव करना है। फर्स्ट ऑपरेशन वी अप्लाई R3 मल्टीप्लाई बाई A। थर्ड कॉलम में A नहीं है तो A को मल्टीप्लाई करके कर सकते हो क्वेश्चन। थर्ड रो में A नहीं है तो A से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट रो में C नहीं है तो आपको उसको C से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड रो में B नहीं है तो सेकंड रो को B से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, किसी भी मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। फर्स्ट रो में C नहीं है तो आप C से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड रो में
बी नहीं है, बी से कर लीजिए। थर्ड रो में ए नहीं है तो हमने ए से मल्टीप्लाई किया, चाहे आप कॉलम से भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग ए बाय थर्ड रो वी हैव ए बी ए सी, ए बी और ए सी आ गया। अब ए से मल्टीप्लाई किया तो बार 1/a भी लिखना पड़ेगा। बताया था प्रॉपर्टी में, इफ़ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय एनी कांस्टेंट एनी नंबर के, तो पूरी वैल्यू ही के से मल्टीप्लाई हो सकती है, हो जाएगी। एग्जाम्पल भी बताया था आपको। तो यहाँ पे हमने ए से मल्टीप्लाई किया थर्ड रो को, तो बार 1/a लिखना पड़ेगा, सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। ये समझ लीजिए कि आप किसी भी रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसी नंबर से बाद डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपरेशन R3 प्लस BR2, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करेंगे। R3 प्लस BR2, सो वी हैव, अब सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट आएगा -AB, -AB को प्लस AB में ऐड किया, थर्ड रो का एलिमेंट बन गया 0। फिर सेकेंड 0 है तो यहाँ पे AC सेम ही रहेगा। थर्ड रो में B से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आ जाएगा -BC। ठीक है जी। R3 प्लस BR2, सेकेंड रो को B से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड किया तो थर्ड रो बिकम 0 AC -BC, दैट इज सेकेंड ऑपरेशन। नाउ यू कैन सी इन थर्ड रो वी कैन टेक C कॉमन, थर्ड रो में से C को कॉमन लेंगे हम, सो वी हैव C/A हो गया, और हमारा हो गया 0 - A0, A0A -B -C -B। नाउ यू कैन सी फर्स्ट एंड थर्ड रो आर आइडेंटिकल्स, फर्स्ट और थर्ड रो की वैल्यू इक्वल है, 0A -B 0A -B, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, 0 into C/A is 0 because R1 and R3 are identicals. So this is the question 6th. These are the first type question where we have proved some results without expanding the determinant, डिटर्मिनेंट को विदाउट एक्सपेंड किए हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हैं। इफ़ इट क्वेश्चन इज रिटन विदाउट एक्सपेंडिंग देन यू कैन नॉट एक्सपेंड, आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, बिना एक्सपेंड के ही आपको रिजल्ट प्रूव करना होगा, आइदर इट इज इक्वल टू 0 और सम डिटर्मिनेंट। So these are first type question 1 to 7 of exercise 4.2. remaining question you can 1-2 part left, you can try yourself. If any doubt you can re-watch this video. So thanks, have a nice day.